and Assalamu alaikum students. Today the date is 22nd July 2020 and the day is Wednesday. We have started chapter number 5, which was about physical states of matter. Now we are going to discuss the point physical states of matter and role of intermolecular forces. Intermolecular forces के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि intermolecular forces are the forces which are present between the molecules to hold them together in a structure. ठीक है. As we know that matter exists in three physical states: gas, liquid and solids. In the gaseous state, the molecules are far apart from each other. Therefore, intermolecular forces are very weak in them. But in liquid and solids, intermolecular forces play a very important role on their properties. In liquid state, molecules are much closer to each other as compared to gases as shown in figure. As a result, liquid molecules develop stronger intermolecular forces which affect their physical properties like diffusion, evaporation, vapor pressure and boiling point. Compounds having stronger intermolecular forces have higher boiling points, as you will see in section 5.3.3. इस पैराग्राफ में हमें ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताया गया है. एज वी नो डैट देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के तीन स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, जिनके दरमियान में जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उनके दरमियान में मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा रिजिड होगा, उतना ही ज़्यादा उनके दरमियान में इंट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा. आपके सामने यहाँ पर तीन केसेस आपके ये सर्कल में रखे गए हैं: गैस मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल एंड सी में सॉलिड मॉलिक्यूल्स. आप देख सकते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के से बहुत दूर और फासले पर हैं. इट मीन्स डैट कि इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा वीक है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स निग्लिजिबल होने के बराबर होती है. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस के निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड्स की निस्बत थोड़ी कम होती है. और इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन वो दे हैव स्पेस बिटवीन दैम. सॉलिड मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा रिजिड और हार्ड होता है. The intermolecular forces become so dominant in solid state that the molecules look motionless. They arrange in a regular pattern. Therefore, they are denser than molecules of liquid. ये points हम लोग already discuss कर चुके हैं. The next point is liquid state. Liquid have definite volume, but their shape is not definite. Highlight this point. A liquid attains the shape of the container in which it is put. A few typical properties of liquids are discussed here. Typical properties first is the evaporation. Evaporation क्या होती है? We know that the escaping of gas molecules, ठीक है, water molecules. The process of changing of a liquid into a gas phase is called evaporation. जब water के molecules steam में convert हो जाते हैं या gaseous state में convert हो जाते हैं, उसको हम लोग evaporation बोलते हैं. It is reverse to condensation in which a gas change into liquid. हाईलाइट करें कि evaporation is reverse to condensation. Evaporation is an endothermic process in which heat is absorbed. ठीक है, endothermic process ऐसा process होता है जिसको हमने temperature provide करना पड़ता है, heat देनी पड़ती है to evaporate them. Such as when 1 mole of water in liquid state is converted into water form, it requires 40.7 kilojoule of energy. In the liquid state, molecules are in a continuous state of motion. We know that because there is intermolecular force which is weaker. They possess kinetic energy. What is kinetic energy? Energy which is due to the motion. But all the molecules do not have same kinetic energy. Majority of the molecules have average kinetic energy and a few have more than the average kinetic energy. इसकी रीज़न क्या है? The molecules having some
more than average kinetic energy, overcome the attractive forces among the molecules and escape from the surface. It is called evaporation. इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो गैस के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नो डैट दे आर इन द कंटिन्यूस मोशन, वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं बिकॉज दे इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीकर। कंटिन्यूस मोशन की यहाँ पे टू टाइप्स आ जाती हैं। मॉलिक्यूल्स या तो आपस में एक दूसरे के साथ हिट करते हैं या वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ हिट करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल जितने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ हिट करता है या जो जितने देर तक मोशन में होता है, मूव करता रहता है, उसके दरमियान में उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है और बाकियों के निस्बत काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनकी मोशन कम होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन। तो जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा मूव करता रहेगा, जितना ज़्यादा वो मोशन में रहेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी काइनेटिक एनर्जी की निस्बत ज़्यादा होगी, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएगी। मीन्स जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो डोमिनेट कर जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स को, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे। एंड व्हाट इज़ द इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड का गैस या स्टीम में कन्वर्ट होने को इवेपोरेशन बोलते हैं। Evaporation is a continuous process taking place at all temperature. The rate of evaporation is directly proportional to temperature. It increases with the increase in temperature because of increase in kinetic energy of the molecule. ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। Evaporation is a cooling process. हाईलाइट करें, when the high kinetic energy molecules vaporizes, the temperature of remaining molecules falls down. To compensate the deficiency of energy, the molecules of liquid absorb energy from the surroundings. As a result, the temperature of the surrounding decreases and we feel cooling. For example, when we put a drop of alcohol on palm, the alcohol evaporates and we feel cooling effect. इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो वेपोराइज हो जाएंगे। ठीक है, वो स्टीम में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, सराउंडिंग्स में चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो हमारे बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो उनका टेम्परेचर कम होगा, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी खुद को नॉर्मल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। वो फिर सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं। एज इवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो और जिसकी वजह से जो हमारा सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर भी ठंडा हो गया। एज वी फील द कूल ऑन द सी साइड, ऑन द स्प्रिंग साइड। ठीक है, इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम फैक्टर, सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, greater is surface area, greater is evaporation, and vice versa. For example, sometimes a saucer is used if tea is to be cooled quickly. This is because evaporation from larger surface area of saucer is more than that of the स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ अ टी कप। कि टी का जो सरफेस एरिया टी कप का जो सरफेस एरिया स्मॉल होता है, जबकि उसके नीचे जो प्लेट होती है, सॉसर होती है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अगर हम लोग चाय को सॉसर में डालते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द टी इन द कप। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई because at high temperature kinetic energy of gas molecules increases so that they overcome the intermolecular force and evaporates rapidly. For example, the water level in a container with hot water decreases earlier than that of the container with cold water. ठंडा पानी कम इवेपोरेट होगा और जो हमारा गर्म पानी है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा बिकॉज उसमें उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज द हॉट वाटर इवेपोरेट्स अर्लियर देन द कोल्ड वाटर।
Intermolecular forces. If intermolecular forces are stronger, molecules force difficulty in evaporation. For example, water has stronger intermolecular forces than alcohol. Therefore, alcohol evaporates faster than water. ये पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, वो इवेपोरेट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती जाएगी, वो इवेपोरेट करते जाएंगे। और वीक कैसे होगी? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस उनकी वीक हो जाएंगी। एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। It was our overall today's lecture. If you find any difficulty in understanding the problem or points, highlight the point and clear it. Thank you.